Hello friends, how are you? In our last class we finished our chapter number 19, biodiversity and its conservation. Okay, and from today's class I am starting our chapter number 17, that is search of life outside the earth. Search of life outside the earth. It is a short, very small chapter, not too much small, but small as we compare with the other chapters. And one question of 3 marks generally comes from this chapter. It is very easy theoretical chapter, and it is also very interesting chapter because in this chapter we will discuss about the position of the earth in the space, then the possibilities of life in the space, and then main space campaigns of the world, and then India in space, that means Indian space programs, and finally we will discuss about the International Space Station. In all of these portions, the various questions that generally comes in our mind about the extraterrestrial life, that is generally we called aliens, we will discuss in that chapter. Okay, now let's start about it. Firstly, in the first topic, we will discuss about the position of Earth in the space. Position of Earth in the space. That here we will discuss that how the life is originated on any planet like Earth, and why it is not originated on the other planets of our solar system. Okay, clear? Let's start it. Latest scientific research shows that there are 1 billion Earth-like planets or world in our galaxy. जो लेटेस्ट रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च जो है, वो ये शो करते हैं या बताते हैं कि हमारे जो गैलेक्सी है, हमारी जो गैलेक्सी है उसमें अर्थ लाइक प्लैनेट्स या वर्ल्ड हैं 1 सॉरी, अर्थ लाइक प्लैनेट्स हमारी गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर रॉकी लाइक द अर्थ. ज़्यादातर अर्थ के जैसे रॉकी हैं. ज़्यादातर कैसे हैं? अर्थ के जैसे रॉकी हैं. एंड देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. और यूनिवर्स में 100 बिलियन, देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. Now you can imagine that what is the size of universe. Got it? If we compare with our normal, from the earth to the sun to our galaxies, you can just consider that our earth is lakhs, approximately 10 lakh. Generally we are taking that 10 lakh time स्मॉलर देन सन. हमारी अर्थ जो है वो सन से कई लाख गुना छोटी है. 10 लाख के लगभग माना जाता है इसको. मतलब हमारे सन में कई लाख अर्थ आती है. एंड इन आवर गैलेक्सी विच इज कॉल्ड मिल्की वे, देर आर अबाउट 250 करोड़ स्टार्स लाइक द सन, जिसमें सन के जैसे 250 करोड़ स्टार्स है. और ऐसी जो है तकरीबन 100 बिलियन, यानी कि 100 अरब गैलेक्सीज यूनिवर्स के अंदर है. इसीलिए यूनिवर्स जो है उसको इनफाइनाइट माना गया है. क्या मानते हैं अपन? उसको इनफाइनाइट कंसिडर किया गया है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है. और जब हम अभी तक हम अर्थ को ही पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो इतने बड़े यूनिवर्स का एक्सप्लोरेशन करना अभी हमारे लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स. एज वी आर मूविंग, प्रोग्रेसिंग in the sector of the science, in the astronomy, in the space program,
the our knowledge is increasing. Okay, NASA senior scientist Alan Stoffen says that today we have strong evidences of life outside the earth, and we shall find life outside the earth in the next 10 years. नासा के जो सीनियर साइंटिस्ट हैं एलन स्टोफन, उन्होंने कहा है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, वी हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस ऑफ लाइफ आउटसाइड द अर्थ, अर्थ के बाहर हमारे पास लाइफ मौजूद होने के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, और नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे. स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस अबाउट द एलियंस will be collected in next 20 to 30 years. उनके अकॉर्डिंग नेक्स्ट 20 to 30 years में, आने वाले 20 से 30 सालों के अंदर, हम एलियंस के जो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, मतलब एलियंस रियल में होते हैं, इस चीज़ के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हम नेक्स्ट 20 to 30 years में कलेक्ट कर लेंगे. ओके, ह्यूमन इज ट्राइंग टू फाइंड लाइफ ऑन अदर अर्थ लाइक प्लैनेट्स or that is or on their snow covered satellites. ह्यूमंस जो हैं, यानी कि हम लोग, हम अर्थ जैसे जो बाकी रॉकी जो प्लैनेट्स हैं हमारी गैलेक्सी में जो मौजूद, उन पर और उनके जो स्नो कवर्ड, जिनमें बर्फ से ढके हुए जो उनके सैटेलाइट्स हैं, उनमें लाइफ को हम फाइंड आउट कर रहे हैं. We are finding life in that. Okay, but till now there is no strong evidences are present in our solar system, and that is a very important questions which I mentioned with the red color, that one and Stephen Hawking. That questions can ask in our exam. In our solar system, Europa, a satellite of Jupiter, has been explored to find life. हमारे सोलर सिस्टम में हमने जो यूरोपा, जो जुपिटर का एक सैटेलाइट है, क्या है ये, जुपिटर का सैटेलाइट है, उसको हमने लाइफ के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि वहां पर अपन लाइफ को फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके, सिमिलरली द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इज फाउंड इन द ओशियन ऑफ लिक्विड मैथेन ऑन द टाइटन सैटेलाइट ऑफ सैटर्न. इसी तरह से जो सैटर्न जो प्लेनेट है, उसका जो टाइटन नाम का जो सैटेलाइट है, जैसे अर्थ होता है, अर्थ के जैसे मून है, अर्थ का जो सैटेलाइट है उसको अपन ने कंसिडर करके क्या नाम दिया हुआ है, मून. वैसे ही जो सैटर्न का जो सैटेलाइट है, जिसको अपन टाइटन के नाम से अपन जानते हैं, उसके ऊपर जो लिक्विड मैथेन के जो ओशियंस हैं, मतलब वो पूरी तरह से लिक्विड मैथेन से कवर्ड है. जैसे हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, उसी तरह से इसमें लिक्विड मैथेन मौजूद है. पूरा जो एटमॉस्फेयर है, जो सरफेसेस है, उसमें लिक्विड मैथेन ही मौजूद है. तो वो जो लिक्विड मैथेन के जो ओशियंस हैं, उन ओशियंस में लाइफ को फाइंड आउट किया जा रहा है. बिकॉज हमारे अर्थ की जो इनिशियल स्टेजेस को अगर अपन कंसिडर करें, मतलब मिलियन ईयर्स अगो जो अर्थ की, जो बिल्कुल अर्थ सन से सेपरेट हुई थी, हॉट स्फीयर था, धीरे धीरे कूल डाउन हुआ. इन दैट सिचुएशन द मैथेन इज प्रेजेंट ऑन अर्थ ऑल्सो. तो उस टाइम पर मैथेन अर्थ के ऊपर मौजूद थी. कौन मौजूद थी? मैथेन गैस उस टाइम पर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थी इन अबेंडेंस, काफ़ी ज़्यादा. अबेंडेंस का मतलब होता है बहुतायत, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में. तो सेम सिचुएशन जो हमारे प्रिमिटिव अर्थ की जो सिचुएशन थी, वो सेम सिचुएशन आज हमें जो टाइटन है या जो यूरोपा है, उन सैटेलाइट्स के ऊपर अपने को देखने को मिलती है. इसीलिए इन सैटेलाइट्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है, इन पर रिसर्च की जा रही है, बाय सेंडिंग द सैटेलाइट्स, by using the huge telescopes, by using the remote sensing devices which are installed in our satellites.
हम बड़े बड़े सैटेलाइट से या जो रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस जो हमारे स्पेस क्राफ्ट पे लगी हुई हैं, अर्थ पे जो सैटेलाइट्स और रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं, उनसे हम इन सैटेलाइट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्स के जो और जो हमारे प्लैनेट्स हैं नियर बाय, जो हमें अर्थ जैसे दिखाई देते हैं, उन पर हम एक तरीके से बोल सकते हैं नज़र गड़ाए हुए हैं, कंटिन्यूसली उनको वॉच कर रहे हैं, ताकि वहां पर लाइफ की प्रेजेंस का कोई भी इंडिकेशन हमें दिखाई दे सके। गॉट इट? नाउ अब जो पैराग्राफ जो पर्टिकुलरली आता है, ये यहाँ पर अपने को लाइफ का, स्पेस के अंदर जो लाइफ है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जिसको अपन बोलते हैं, उस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ में के बारे में जो साइंटिस्ट के जो बिलीव्स हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं, सोच है या उनकी जो धारणाएं हैं, उनसे रिलेटेड है। ओके, ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बिलीव दैट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इज प्रेजेंट इन अबंडेंस। साइंटिस्ट का एक ग्रुप ये मानता है कि जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है वो अबंडेंस के अंदर, बहुतायत के अंदर मौजूद है, बहुत ज़्यादा नेचर यूनिवर्स में मौजूद है। इट इज कंटिन्यूसली कम्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो लाइफ है, यानी कि जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है, ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ अर्थ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में लगातार आती रहती है। कंटिन्यूसली इट इज कमिंग। दे ऑल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ डिड नॉट ओरिजिनेट ऑन अर्थ। वो ये भी मानते हैं कि अर्थ जो है वो जो लाइफ है वो अर्थ पर ओरिजिनेट नहीं हुई है। दे बिलीव दैट लाइफ वर नॉट ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ। लाइफ अर्थ पर ओरिजिनेट नहीं हुई है, बल्कि इट केम फ्रॉम आउटर स्पेस। ये किसी आउटर स्पेस से अर्थ के ऊपर आई है, और फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने यहाँ पर जो सुटेबल कंडीशन जो उनको मिली, फेवरेबल कंडीशन जो थी, उस फेवरेबल कंडीशन के कारण से उन्होंने ग्रो किया, और ग्रो करते हुए धीरे धीरे इवोल्यूशन से सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से मोर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स, एंड देन ह्यूमंस तक का डेवलपमेंट उन्होंने एक तरीके से प्रोसेस में उन्होंने डेवलप किया। ओके, so we can say that they also believe that life did not originate on earth। उनका ये मानना है कि लाइफ जो है वो अर्थ पर ओरिजिनेट नहीं हुई है। इट केम फ्रॉम आउटसाइड स्पेस। ये आउटसाइड स्पेस से अर्थ के ऊपर आई है। दिस हैव नॉट बीन सर्टिफाइड टिल नाउ। अभी तक इसको कोई भी सर्टिफाइड नहीं किया गया, इसको प्रमाणित, प्रूव्ड हम नहीं कर पाए हैं। बिकॉज फॉर दैट we have to explore the universe and found microorganisms or any living organism on any other celestial object। हमें इसको सर्टिफाइड करने के लिए यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और किसी न किसी ऐसे प्लेनेट को या सैटेलाइट को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा जहां पर लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डेवलप्ड किसी भी फॉर्म के अंदर हमें मिले। अगर मिल जाएगी तो डेफिनेटली ये थ्योरी एक्सेप्टेबल होगी कि भाई लाइफ जो है, क्योंकि क्रिएशन अर्थ पे हुआ, वो वहाँ पर हो, ये कोई इतना ज़्यादा इजी वे नहीं है। तो ये मान सकते हैं कि भाई बाहर से, वहाँ से यहाँ पर आई होगी। ओके, another group of scientists think that life can be found outside the earth but may not be as developed as on earth। साइंटिस्ट का एक ग्रुप ये भी मानता है कि जो लाइफ है वो अर्थ के बाहर मौजूद है, लेकिन वो इतनी डेवलप्ड नहीं है जितनी डेवलप्ड अर्थ पर है। दैट मीन्स उनके अकॉर्डिंग लाइफ जो है आउटसाइड द अर्थ वो प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंडीशंस में है, या फिर जो इनिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के भी पहले जो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स बने थे अर्थ पर, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की फॉर्म के अंदर वो मौजूद है। गॉट इट?
They believe that rocky planet having water is not enough for the development of life. उनके अकॉर्डिंग केवल एक रॉकी प्लेनेट, अर्थ के जैसा एक चट्टान वाला प्लेनेट जिस पे वाटर मौजूद है, वैसी कंडीशंस ही लाइफ के क्रिएशन के लिए रिक्वायर्ड, वही कंडीशंस अगर अपन इज नॉट इनफ, वही पर्याप्त नहीं है। उसके अलावा मतलब केवल एक प्लेनेट है विच हैज रॉकी स्ट्रक्चर एंड वाटर कैन ऑल्सो प्रेजेंट, दैट इज नॉट इनफ फॉर द क्रिएशन ऑफ लाइफ। केवल वो ही चीजें लाइफ के लिए, रेस्पॉन्स क्रिएशन ऑफ लाइफ के लिए इनफ नहीं है। आफ्टर ओरिजिनेशन ऑफ द लाइफ, it is necessary that planet should have an environment which supports life. Life origination किसी भी रॉकी स्ट्रक्चर पे हो सकता है या किसी भी लिक्विड फॉर्म वाले प्लेनेट पर या गैसियस फॉर्म वाले प्लेनेट पर हो सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बट लाइफ के डेवलपमेंट के लिए उस प्लेनेट पर जो सपोर्टिव लाइफ कंडीशंस हैं, लाइफ सपोर्टिव कंडीशंस का कंटिन्यूसली बने रहना जरूरी है। ओरिजिनेशन से ज्यादा जरूरी है उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस का बने रहना। आगे अपन पढ़ेंगे, बहुत सारे प्लेनेट्स हैं जिनकी प्रिमिटिव कंडीशन अर्थ के जैसी है, मतलब अर्थ की जो प्रिमिटिव कंडीशंस थी वैसी ही प्रिमिटिव कंडीशंस उन पर भी है। तो डेफिनेटली जिस तरीके से अर्थ पर इनिशियल जो एलिमेंट्स थे उनके जुड़ने से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से मोर कॉम्प्लेक्स से बाद में जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सेल डेवलप हुई, तो वैसा ही वहां पर भी हुआ होगा क्योंकि सिमिलर कंडीशंस हैं दोनों प्लैनेट्स पर। बट वो जो अदर प्लैनेट्स थे उन्होंने वो फेवरेबल जो कंडीशंस जो थी उसके आगे जो रिक्वायर्ड थी, वाटर की प्रेजेंस, टेम्परेचर का एक सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल कंडीशंस में मिनरल्स वगैरह, वो वहां पर सस्टेन नहीं रह पाए, या तो क्रिएट ही नहीं हुए या फिर सस्टेन नहीं रह पाए। इसलिए जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर बने होंगे वो उसी टाइम डिस्ट्रॉय हो गए। दैट्स व्हाई देयर इज नो लाइफ एट दैट टाइम ऑन दैट प्लैनेट्स। इसलिए उन प्लेनेट जिनकी प्रिमिटिव कंडीशन अर्थ के प्रिमिटिव कंडीशन की जैसी थी लेकिन वहां का एनवायरनमेंट लाइफ सपोर्टिव ना होने के कारण से जो ऑर्गेनिज्म बने भी होंगे तो वो एलिमिनेट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। इसलिए आज वो प्लेनेट जो है वो हम लाइफलेस हैं हमारे लिए, मतलब वहां पर कोई लाइफ के साइन हमें नहीं मिले। Got it? To keep the environment life sustaining continuously is very difficult. Life sustaining एनवायरमेंट को कंटिन्यू रखना ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। ओके, साइंटिस्ट believes that when a planet is formed it is very hot and explosive. साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जब कोई प्लेनेट बनता है, एक्सप्लोर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हॉट और एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। जैसे अपन ने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा अपन ने, व्हेन अर्थ इज फॉर्म्ड इट इज ए हॉट स्फीयर ऑफ गैसेस। अर्थ जब सेपरेट हुई या बनी तो उस टाइम पर वो एक हॉट स्फीयर था गैसेस का। ओके, तो वैसे ही अदर प्लैनेट्स भी सेम उसी टाइप में रहते हैं। It takes 5 to 10 million years to cool down so that life can be originated. वो प्लेनेट जो है वो 5 to 10 मिलियन ईयर्स उनको लगते हैं कूल डाउन होने में। क्या होने के लिए? कूल डाउन होने के लिए 5 to 10 मिलियन ईयर्स लगते हैं ताकि कूल डाउन होने पर वहां पर लाइफ का ओरिजिनेशन किया जा सके, लाइफ ओरिजिनेट हो सके। It is not necessary for the planet to have a life-sustaining environment for the origination of life. ये जरूरी नहीं है कि प्लेनेट जो है उसमें लाइफ सस्टेनिंग एनवायरनमेंट
मौजूद हो तभी जाकर लाइफ क्रिएट होगी। लाइफ सस्टेनिंग एनवायरनमेंट चाहिए हमें तब जब हमारे जो क्रिएटेड लाइफ है वो ग्रोथ करे। उसकी ग्रोथ के लिए हमें चाहिए क्रिएशन। तो बहुत जो एनारोबिक कंडीशंस हैं या जो नॉन सस्टेनेबल जो कंडीशंस है लाइफ के लिए, उनमें भी हो सकता है। बट after origination it becomes necessary to keep the environment or atmosphere life supportive permanently। लेकिन लाइफ की क्रिएट होने के बाद, लाइफ क्रिएट होने के बाद बहुत ज़रूरी है या नेसेसरी है टू कीप द एनवायरनमेंट, जो वहाँ का उस प्लेनेट का जो एनवायरनमेंट है या जो एटमॉस्फेयर है वो लाइफ सपोर्टिव बना रहे। क्या रहे वो? लाइफ सपोर्टिव बना रहे। एक स्टेटमेंट बोला जाता है, द रियल टेस्ट ऑफ लाइफ started after the 1 to 1.5 million years of development of planet। प्लेनेट की डेवलपमेंट की जो फर्स्ट जो 1 से लेकर 1.5 बिलियन ईयर्स की जो कंडीशंस हैं वो एक तरीके से रियल टेस्ट है लाइफ की क्रिएशन का। अगर वहां उस कंडीशन में फेवरेबल कंडीशंस कंटिन्यूसली बनी रहती है तो वो बिल्कुल लाइफ जो है वो वहां पर सस्टेन करेगी। गॉट इट? लेकिन अगर हल्की सी भी एडवर्स कंडीशंस वहां पर क्रिएट होती हैं जो लाइफ के सपोर्ट में नहीं है, तो देयर इज ए ग्रेट चांस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ क्रिएटेड लाइफ। तो वहां पर एक ग्रेट चांस है, बहुत बड़ा चांस है कि जो क्रिएटेड लाइफ है वो वहां से एलिमिनेट हो जाए या वो वहां पर डिस्ट्रॉयड हो जाए। गॉट इट? Research suggests that most of the planet failed to make their environment suitable for life in the first 1 billion years। जो बहुत सारे जो रिसर्च हैं हमने जो किए हैं स्पेस में, वो ये सजेस्ट करते हैं, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स हैं वो फेल हो गए अपने एटमॉस्फेयर को लाइफ के सूटेबल बनाए रखने में। इन द फर्स्ट बिलियन ईयर, जो पहला फर्स्ट बिलियन ईयर ही जो था, उस फर्स्ट बिलियन ईयर के ही स्टार्टिंग में या फर्स्ट बिलियन ईयर जो स्टार्टिंग है लाइफ का, उसी में वो प्लैनेट्स फेल हो गए अपने एटमॉस्फेयर को या एनवायरनमेंट को लाइफ सपोर्टिव बनाए रखने के लिए या सूटेबल बनाए रखने के लिए। इसीलिए नो लाइफ इज प्रेजेंट। एज अ रिजल्ट द फॉर्म्ड लाइफ वाज डिस्ट्रॉयड in initial stage and no life is present on these planets। इसके रिजल्ट में वहां पर जो लाइफ फॉर्म्ड हुई थी वो डिस्ट्रॉयड हो गई, खत्म हो गई इनिशियल स्टेजेस में ही। एंड नो लाइफ इज प्रेजेंट ऑन दीज प्लैनेट्स। और आज के टाइम पर अगर अपन बात करें तो उन प्लैनेट्स पर कोई लाइफ मौजूद नहीं है। Got it? There are many galaxies in the universe. One of galaxy named Milky Way। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। अभी अभी अपन ने बात की 100 मिलियन गैलेक्सीज हैं, जिनमें से एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। एक गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। सन इज द स्टार ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ गैलेक्सी of sun, yeah, write the name of galaxy in which earth is a part of that। हमें उस गैलेक्सी का नाम पूछा जा सकता है जिसमें अर्थ सिचुएटेड है, या सन जिसका एक पार्ट है, या अर्थ जिसका एक पार्ट है। तो द नेम्ड मिल्की वे, सन इज द स्टार ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। सन जो है वो इस मिल्की वे गैलेक्सी का एक स्टार है। एंड वी लिव ऑन द अर्थ विच इज प्लेनेट ऑफ सन। और हम जो हैं वो अर्थ नाम का जो प्लेनेट है, जो कि सन का एक प्लेनेट है, उस पर अपन रहते हैं। गॉट इट? क्लियर? द
ऑर्गेनिज्म आउटसाइड द अर्थ इज कॉल्ड एलियन। जो ऑर्गेनिज्म अर्थ के आउटसाइड जो होते हैं उनके लिए क्या वर्ड काम में लिया जाता है? एलियंस। और इन अदर वर्ड्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इज कॉल्ड एलियन। जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है मीन्स अर्थ के बाहर जो लाइफ मौजूद है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया लैंड, अर्थ। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि उसके बाहर, अर्थ के अलावा जो लाइफ जो मौजूद है इज कॉल्ड एलियंस। उनके लिए क्या वर्ड काम में लिया जाता है? एलियंस। गॉट इट? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड टिल नाउ, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ फुल ऑफ डाइवर्सिटी। आज तक हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, by using the telescopes, by using the satellites, by using the remote sensing devices, etc., etc., or sometime by naked eyes also. In the primitive time, the Indian sex used his or her eye to watch the universe, the sky, okay, and by considering the movement of these stars, they made different kind of time calculating devices, टाइम कैलकुलेटिंग मेथड्स, डी कैलकुलेटिंग मेथड्स, एक्सेट्रा। ओके, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो यूनिवर्स की जो गैदर अपन करते हैं, चाहे वो उसके लिए टेलीस्कोप्स हो, चाहे रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस हो, या प्रिमिटिव टाइप में जैसे लोग अब नेक्ड आइज के हेल्प से यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते थे, तो उन सभी का जो एनालिसिस है वो ये बताता है कि जो अर्थ ही एक मात्र ऐसा प्लेनेट है अभी तक जितना हम जानते हैं जिसमें लाइफ मौजूद है, विच हैज लाइफ, जिसमें जीवन है या लाइफ है, फुल ऑफ विच हैज लाइफ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, जिसमें लाइफ मौजूद है फुल ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब बहुत सारे डाइवर्सिट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म्स अर्थ पर देखते हैं। इनिशियली human had limited knowledge, so he tried to answer the possibility of life outside the earth by imagination. Initially हमारा जो नॉलेज जो था यूनिवर्स के बारे में या अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में वो बहुत लिमिटेड था, बिकॉज उस टाइम तक कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशंस, साइंटिफिक टूल्स, सैटेलाइट्स, टेलीस्कोप्स, उन सब का इनोवेशन नहीं हुआ था। इसलिए हमारा जो स्पेस के लिए जो नॉलेज था वो था बाय नेक्ड आइज से जो हमने देखा। और नेक्ड आइज की यू नो दैट देयर इज अ लिमिटेशन, उनकी एक लिमिटेशन होती है, तो हमें बहुत लिमिटेड नॉलेज उस टाइम पर अवेलेबल था। सो ही ट्राइड टू आंसर द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आउटसाइड द अर्थ बाय इमेजिनेशन। इसलिए उस टाइम पर ह्यूमंस ने जो लाइफ, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है उसकी पॉसिबिलिटी को अपनी इमेजिनेशन से उसका आंसर दिया। ह्यूमन क्रिएटेड मैनी स्टोरीज अबाउट वेरियस लाइफ फॉर्म्स ऑन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ह्यूमंस ने अपनी जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए, अपने इमेजिनेशन, माइंड इमेजिनेशन का यूज करते हुए बहुत सारी स्टोरीज बनाई हैं, जिसमें अर्थ के बाहर जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं या अर्थ के बाहर जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर वेरियस लाइफ फॉर्म्स के बारे में बताया। मैनी पॉपुलर मूवीज लाइक कोई मिल गया, आई नो यू ऑल स्टूडेंट्स वॉच दिस मूवी, जादू, ऋतिक रोशन, ओके। So many popular movies like the कोई मिल गया have been made। बहुत सारी जो पॉपुलर मूवीज हैं, इंडिया में तो कोई मिल गया ही है, बाकी तो विदेशों में तो बहुत सारे मिल गए। फॉरेन कंट्रीज, यू नो दैट इन द हॉलीवुड देयर आर लॉट्स ऑफ साइंस फिक्शन मूवीज विच आर रिलेटेड विद द एलियंस, ओके। सो बहुत सारी जो पॉपुलर मूवीज हैं वो इस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई। मच लिटरेट हैज बीन रिटर्न ऑन इट। इसके अलावा बहुत सारे जो लिटरेट्स हैं यानी कि नॉवेल वगैरह जो हैं
इस टॉपिक का मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ उस पर लिखे गए हैं. बट टिल नाउ नो टिल नाउ देर इज नो फिजिकल एविडेंस अबाउट द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ. लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी एविडेंसेस नहीं है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की. We have many stories, we have many literature, we have many movies related about the extraterrestrial life, but there is no strong evidence which indicate the presence of life outside the earth. Got it? About the second topic, that is possibility of life in the space, that is creation, or how the life is created on the earth, and then how the life uh, traveling in the space, that means the possibilities of life on the space, we will discuss in next class. Okay, hope you like it. Thank you.